Hello everyone, lecture number 10, subject name client side scripting language JavaScript, diploma computer, third year, fifth semester. Today we are going to study the window object. As we study in previous lecture number 9, the DOM tree. So window is the topmost object in a DOM tree, right? So यहाँ पे हम देखेंगे window object. Okay, so window is the object of a browser. Okay, so what is the window object? The window object represent a window in browser. An object of window is created automatically by the browser. Okay, so it is created by the browser, and we can create multiple window at a same time by using programming. Window is the object of a browser. Okay, it is not the object of JavaScript. Okay, window is the object of the browser, not the object of the JavaScript. Okay, it not object of the JavaScript. So what are the object of the JavaScript? Just like the string, array, date are the object of the JavaScript, right? Next, method of the window object, right? There are the different methods of the window object, like alert method. We already use the alert method for display the string value, okay, with the OK button. Okay, second is the confirm method used to create the confirm dialog box with the OK and cancel button. Prompt method used to uh, taking the input from user side, right? Open method, this is a new method for us. Open method used to create open a new window in a browser. Closing the window. Set timeout, perform the action after a specified time, like the calling function and evaluating expression. Okay, so exam में क्वेश्चन आ सकता है. Write down the different methods of window object, right? So we can write those methods, right, along with one example. So already we studied the example of the alert, confirm and the prompt. Okay, so we see example one by one. First, alert. Okay, we can write here window dot alert, because the alert is a method of the window object, right? The script is a script is indicate the starting of the JavaScript, type equal to text under slash JavaScript. Okay, function msg. Function name is the msg. It is very simple example for indicating the use of the alert method. Okay, we in the function msg we write the alert hello alert box, and we can also write here window alert hello alert box. Okay, you may write any message in alert method, okay, as an argument, and closing the script tag and the input tag for creating the button, type equal to button, value equal to click, and on click msg of the method. When user click on a button, okay, uh, automatically alert box appear, alert dialog box with the OK button, and the message is the hello alert box. Okay, सो यहाँ पे हम उसको रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये इट इज़ अ बिलोंगिंग टू द विंडो ऑब्जेक्ट. अलर्ट मेथड इज बिलोंगिंग टू द window object. Second thing is a confirm method. Confirm method having two button, OK and cancel, right? So same script tag starting, it indicate the starting of the JavaScript function message. Okay, variable v equal to confirm are you sure. Here we write the script and the program for deleting record, right? When user click on a button, input type button, value equal to delete record, on click msg. When user type click the button, so confirm dialog box will appear and asking are you sure, and there is two button. First is the OK and second is the cancel. If user click OK, then you can write a code for deleting the data from a window. Okay, so here we only write the alert OK.
Okay means it indicate we not deleting anything, we just for practice purpose we write here the alert. Okay, it appear the one dialog box alert and having the button okay. If you cancel then it appear the cancel on a alert box, right? इट इज़ सिंपल एग्जाम्पल फॉर कन्फर्म। ओके, अब एक्चुअल प्रोग्रामिंग में क्या करना है, आपको क्या करना है, अगर उसने यस किया यू श्योर यस डिलीट, जैसे कि विंडो एक्सपी में भी हम करते हैं राइट, व्हेन वी डिलीट समथिंग सम फाइल एंड सम फोल्डर देन इट आस्किंग आर यू श्योर फॉर डिलीटिंग फाइल, देर आर टू बटन ओके एंड कैंसिल। जब हम ओके पे कैंसिल क्लिक करते देन पूरा डेटा पूरा जो डिलीट हो जाता है। ओके, विंडो इज MS XP ऑल्सो यूज अ विंडो ऑब्जेक्ट। ओके, तो XP में भी XP में जैसे कि हम MS वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पे मल्टीपल विंडो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि ओपन डायलॉग बॉक्स व्हेन यू क्रिएट ओपनिंग द सम फाइल, डिलीट डायलॉग बॉक्स राइट, सेव एज डायलॉग बॉक्स, सेव डायलॉग बॉक्स राइट। तो वो सब डायलॉग बॉक्स है और डायलॉग बॉक्स यानी विंडो है राइट। तो ये विंडो के जो मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे उसको क्रिएट करेंगे। विंडो एक्सपी में विजुअल VC++ यूज़ होता है फॉर अ प्रोग्रामिंग। विंडो एक्सपी बना है VC++ से, तो उसको अगर आपको विंडो के प्रोग्रामिंग करनी है विंडोज़ एक्सपी की या विंडोज़ OS की, तो VC++ स्टडी करना पड़ेगा और उससे वो ऑपरेटिंग सिस्टम बना है, तो वहाँ पे विंडो के ऑब्जेक्ट है वो वहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे। कंसेप्ट आर सेम बट व्हाट सिंटेक्स आर डिफरेंट। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या करना है कि ये लाइट वेट है, तो यहाँ पे जो फैसिलिटी है वो सब सारी लाइट वेट है राइट। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल हमको वर्क करने हैं। ओके, देन उसके बाद प्रॉम्प्ट, एज वी नो प्रॉम्प्ट इज यूज फॉर द गेटिंग द इनपुट फ्रॉम यूजर साइड राइट। सेम थिंग, सेम प्रोग्राम हियर, स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट राइट। function MSG variable v equal to prompt who are you and alert IM plus variable name right. So when user you click on a button right, it appear one dialog box prompt having the one input text box. When user enter some name, suppose user enter Raj या Rohit, user enter a Rohit, तो Rohit store in a v variable v, and after that the when user OK prompt button, then automatically appear the alert dialog box right, alert window, and it show the display the username I am Rohit. It will be the result of this program right. सो यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी हो गया, प्रॉम्प्ट यूज़र से इनपुट लेगा और इनपुट को अलर्ट में हमने या फिर यू डायरेक्टली राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आई एम प्लस वी, देन इट डिस्प्ले द आई एम रोहित ऑन विंडो राइट। देन ओपन, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा था कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ न्यू विंडो राइट। तो सिंपल सा प्रोग्राम है, एक नया विंडो बनाना है, तो विंडो बनाना है या विंडो ओपन करना है तो उसके लिए ओपन मेथड यूज़ होगा राइट। तो यहाँ पे भी हमने सेम एग्जांपल लिया है, यहाँ पे खाली हमने ओपन मेथड का यूज़ किया है। ओपन स्क्रिप्ट स्टार्ट किया, फंक्शन MSG ओपन, यहाँ पे नीचे बटन के अंदर हमने ऑन क्लिक MSG दे दिया है। देखो इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू इक्वल टू जावा टी पॉइंट या कुछ भी आपको वैल्यू दे दो, ऑन क्लिक इक्वल टू MSG दिया, तो MSG के अंदर क्या होगा वहाँ पे ओपन करेंगे तो वहाँ पे www.themesui.org ये नए ओपन में ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा, थीम कॉलेज का वेबसाइट नए विंडो में ओपन हो जाएगा राइट। तो ये ओपन विंडो ओपन करने के लिए एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट न्यू विंडो राइट। तो इस तरह हम न्यू विंडो बना भी सकते हैं राइट, ऑटोमेटिकली क्रिएट भी हो जाएगी राइट। उसके बाद ये एग्जाम्पल है कि हमको क्या करना है कि हमको विंडो के अंदर दूसरा विंडो बनाना है ओके फॉर द यूज़र यूज़। अब देखो पहले विंडो में, इसके पहले प्रोग्राम में जो विंडो ओपन होगा वो एक विंडो के अंदर एक वेबसाइट हमने URL दिया है, तो उसका एक ही आर्गूमेंट पास किया है ओपन के अंदर राइट। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो विंडो ओपन होगा उसके अंदर थीम कॉलेज का वेबसाइट आ जाएगा। पर यहाँ पे जो हमारा ये जो दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने क्या किया है, वेरिएबल विन लिया है, ये यूज़र डिफाइन वेरिएबल इक्वल टू विंडो डॉट ओपन। यू कैन राइट अ विंडो डॉट ओपन और डायरेक्टली यू कैन राइट अ ओपन ऑल्सो राइट, क्योंकि वो विंडो क्या है, टॉप हेराल्ची में टॉप लेवल पे विंडो ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पे हम वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लिखेंगे तो भी वो इंटरप्रेटर उसको कंसिडर करेगा, और लिखेंगे तो भी उसको कंसिडर करना है राइट।
तो ओपन किया हमने, यहाँ पे हमने जो फर्स्ट था जो आर्ग्यूमेंट वेबसाइट एड्रेस का वो हमने नल रखा है, तो यहाँ पे नया विंडो बनेगा और उसके अंदर कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं होगा। और विंडो का जो टाइटल होगा वो टेस्ट विंडो होगा, राइट। वो टाइटल विंडो का टाइटल ऊपर आ जाएगा टेस्ट विंडो। एंड विंडो का विथ होगा वो 200 एंड द हाइट होगा जो 100। तो राइट टॉप कॉर्नर से 200 और 200 विथ एंड 100 हाइट का एक विंडो ओपन हो जाएगा, राइट। विन डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, विन मीन्स वॉट, विन यहाँ पे जो नया विंडो बनाया वो उसका वो ऑब्जेक्ट हो गया, विन डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो वो जो नया विंडो क्रिएट हुआ है उसके ऊपर एक मैसेज आएगा, दिस इज अ टेस्ट विंडो, राइट। अगर हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिया तो हमारा जो मेन विंडो इसके ऊपर आउटपुट आएगा, पर हमने यहाँ पे विन डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया तो हमारा जो नया विंडो हमने क्रिएट किया है उसके ऊपर आउटपुट आएगा, राइट। एकदम सिंपल प्रोग्राम है। इसके बाद ये जो सेकंड प्रोग्राम है जिसके अंदर नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हमने पास किए हैं, राइट। बॉडी टैग के अंदर ऑन क्लिक बटन विन ओपन करके एक मेथड है, ऑन क्लिक पे ये जो विन ओपन वो कॉल होगा, विन ओपन का हम यहाँ पे कोड देखते हैं। स्क्रिप्ट हमने स्टार्ट किया है, राइट। यहाँ पे हमने फंक्शन लिया है विन ओपन, राइट। तो विंडो डॉट ओपन http://www.themesui.org अंडरस्कोर ब्लैंक, ब्लैंक मीन्स क्या होगा, एक नया विंडो ओपन होगा। टूल बार भी उसके अंदर यस किया तो टूल बार भी होगा, स्क्रोल बार भी हमने यस किया तो वहाँ पे वो भी होगा। रिसाइजेबल यानी विंडो में हम विंडो को मिनिमाइज मैक्सिमाइज या उसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, राइट। हमने यहाँ पे नो दिया तो विंडो फिक्स हो जाएगा, राइट। उसके बाद उसका टॉप 500, लेफ्ट 500, विथ 400 एंड द हाइट 400। तो ये जो टॉप और जो टॉप एंड लेफ्ट है, राइट। तो विंडो टॉप से 500 पिक्सल एंड लेफ्ट साइड से 500 पिक्सल यानी 500 पिक्सल की जो डिस्टेंस है, राइट, अपर मोस्ट कॉर्नर से वहाँ से विंडो क्रिएट होगा। और विंडो का विथ 400 होगा और जो हाइट है वो भी 400 होगा। तो यानी रेक्टेंगल बॉक्स में एक विंडो ओपन होगा, राइट। तो इस तरह विंडो ये ओपन होगा। इसके मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट अपने ये एग्जांपल में देख लिए, राइट। तो यहाँ पे जो टाइटल है वो ब्लैंक हो जाएगा क्योंकि हमने अंडरस्कोर ब्लैंक रखा है। उसके बाद क्लोजिंग विंडो करना है, विंडो डॉट क्लोज करेंगे तो विंडो क्लोज हो जाएगा, राइट। हमने दूसरे बटन पे लिया क्लोज विंडो, उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी ओपन विंडो होगा वो क्लोज हो जाएगा, राइट। उसके बाद है हिस्ट्री ऑब्जेक्ट। जिस तरह हमने विंडो ऑब्जेक्ट देखा है, राइट, तो उस तरह हमने विंडो के अंदर जो हमने जो अपर मोस्ट ऑब्जेक्ट है वो ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट है, राइट। उसके विंडो के ऊपर कौन से दूसरे ऑब्जेक्ट हो गए, जैसे कि हमारा हिस्ट्री होगा, डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंट हमने यूज़ किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके, वो हमने यूज़ किया है। फिर लोकेशन होगा और नेविगेटर होगा। तो ये चार जो ऑब्जेक्ट है वो उसके ऊपर हो गए। तो एग्जाम में हिस्ट्री का आता है, राइट। तो हिस्ट्री, एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑब्जेक्ट विद एग्जाम्पल। तो हिस्ट्री इज अ हिस्ट्री, जब हम ब्राउज़र पे कंट्रोल एच करते हैं तो वहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट हो जाता है कि हमने कौन से दिन कितनी वेबसाइट यूज़ की, उसका सीक्वेंस भी रहता है, राइट। कि हमने कौन सी वेबसाइट पे लिंक पे क्लिक करके दूसरी वेबसाइट पे गए। नेविगेशन भी पूरा स्टोर होता है, वेबसाइट का एड्रेस भी स्टोर होता है, राइट। ये सारा का सारा डेट और टाइम के साथ पूरा सेव होता है। तो कंट्रोल एच करेंगे तो हिस्ट्री वहाँ पे सेव हो जाएगा। तो विंडो का ही काम है हिस्ट्री को क्या करना, मेंटेन करना, राइट। तो जावा स्क्रिप्ट हिस्ट्री ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट एन एरे ऑफ URL विजिटेड बाय द यूज़र। तो वहाँ पे एक एरे क्रिएट होगा जो वेबसाइट को यूज़र ने विजिट किया उस हिसाब से। द हिस्ट्री ऑब्जेक्ट इज़ द विंडोज़ प्रॉपर्टी। तो ये विंडोज़ की एक प्रॉपर्टीज़ है, राइट। उसके बाद है कि हमको हिस्ट्री अगर देखनी है, राइट, तो हिस्ट्री देखने के लिए हमको कि हमने प्रीवियस बैक कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। और नेक्स्ट के लिए हमको 1 लिखना है, गो 1 लिखना है, और प्रीवियस के लिए -1 लिखना है, राइट। तो बैक और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, गो 1 और गो -1 भी कर सकते हैं। गो -1 किया तो वो प्रीवियस पेज पे जाएगा और गो 1 किया तो वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा, राइट। इस तरह ये हिस्ट्री ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे हिस्ट्री जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं, विंडो की प्रॉपर्टी हिस्ट्री, वो हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये आगे के जो डॉक्यूमेंट के जो कंट्रोल्स है उसकी वैल्यू को हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। पहला जो उसका मेथड है वो डॉक्यूमेंट का, यहाँ पे देखो हमने पहले विंडो देखा, उसके बाद हमने हिस्ट्री ऑब्जेक्ट देखा, उसके सिंपल से हमने यहाँ पे मेथड देखे, यहाँ पे किस तरह बैक फॉरवर्ड गो एंड गो -1। और अब यहाँ पे हम देखेंगे
जो वेब कंट्रोल से उसकी हमको वैल्यू किस तरह एक्सेस करना है, राइट। तो फर्स्ट इज द गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी ये मेथड के थ्रू, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का मेथड है, ये मेथड के थ्रू हम उसका वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सा प्रोग्राम है एडिशन ऑफ 2 नंबर का, राइट। तो ये प्रोग्राम में हमने स्क्रिप्ट लिखा है, टाइप इक्वल टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट, फंक्शन ऐड, फंक्शन का नाम ऐड है, राइट। और यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए, वेयर नंबर और नंबर 1। तो हम यहाँ पे नीचे फॉर्म पे आ जाते हैं। पहले हमने फॉर्म कैसे क्रिएट किया वो देख लेते हैं। जो रेड टेक्स्ट में लिखा हुआ है एंटर नंबर, ये पहले मैसेज आएगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट, यानी यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट होगा, राइट। आगे होगा एंटर नंबर, उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, राइट। और आईडी इक्वल टू नंबर, तो उसका जो आईडी नंबर होगा, यानी उसका आईडी होगा नंबर, उससे आइडेंटिफाई होगा नंबर के थ्रू। और यहाँ पे हमने बी आर लिया तो नए न्यू लाइन पे चला जाएगा। उसके बाद सेकंड थिंग, सेकंड नंबर, इनपुट टाइप टेक्स्ट आईडी इक्वल टू नंबर 1। तो यहाँ पे हमको आईडी को याद रखना है, रिमेंबर। अब ये आईडी के थ्रू हम क्या करेंगे, वो टेक्स्ट को हम एक्सेस करेंगे। तो नंबर और नंबर 1 ये दोनों आईडी है। उसके बाद हमने एक बटन लिया है, राइट। तो यहाँ पे जो ऑन क्लिक पे ऐड, मैंने क्या किया है, ऐड फंक्शन को कॉल किया। अब ऐड फंक्शन हम देखते हैं, राइट। डॉक्यूमेंट डॉट पहला जो वेयर नंबर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नंबर। तो पहले जो टेक्स्ट में जो भी वैल्यू होगा, राइट, जैसे हमने 10 एंटर किया है, डॉट वैल्यू, तो 10 जो स्ट्रिंग में होगा, डॉट वैल्यू से वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और नंबर में से हो जाएगा, वेयर नंबर में से हो जाएगा। फिर वेयर नंबर 1 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नंबर 1 डॉट वैल्यू। तो वो अपने दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में अगर हमने 20 डाला है तो 20 नंबर 1 में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, अलर्ट नंबर 1 नंबर प्लस नंबर 1, तो 10 प्लस 20 30, तो अलर्ट बॉक्स में आउटपुट 30 आ जाएगा, राइट। इस तरह सिंपल सा गेट एलिमेंट बाय आईडी का ये प्रोग्राम, ये ऑलरेडी हमने पहले भी किया हुआ है, राइट, ओके। उसके बाद हम सेकंड मेथड देखेंगे, गेट एलिमेंट बाय नेम। जो भी एलिमेंट है, राइट, उसका हम क्या करेंगे, हम नेम यूज़ करेंगे। मैं पहले क्यूब का प्रोग्राम बनाने वाला था, मगर बाद में मैंने इजी यानी ये वाला प्रोग्राम बना दिया है, एडिशन ऑफ 2 नंबर का, राइट। तो यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय नेम। तो अब देखो यहाँ पे फॉर्म पे आ जाते हैं हम लोग, एंटर नंबर, देखो इनपुट टाइप टेक्स्ट आईडी नंबर और नेम इक्वल टू N1। अब यहाँ पे जो N1 नेम लिखा है वो भी उसको कंट्रोल को, टेक्स्ट बॉक्स को आइडेंटिफाई करेगा। सेकेंड नंबर, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट आईडी इक्वल टू नंबर 1 एंड नेम इक्वल टू N2। तो यहाँ पे N1 एंड N2 ये इसके थ्रू हम नेम प्रॉपर्टी के थ्रू उसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे। और बाद में बटन है ऑन क्लिक इक्वल टू ऐड, राइट, वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे ऐड लिख दो, एडिशन लिख दो, राइट। मैंने क्यूब का प्रोग्राम बनाने वाला था मगर मैंने यहाँ पे एडिशन का ऊपर बना दिया, राइट। तो ऑन क्लिक इक्वल टू ऐड कॉल होगा। अब ऐड कॉल होगा तो क्या होगा, वहाँ पे 1 नंबर और नंबर 1 ये 2 वेरिएबल लिया है, सेम प्रोग्राम है पहले प्रीवियस जो प्रोग्राम है उस तरह, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई नेम। तो सिंपल, आपको स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करना है, जहाँ पे ई कैपिटल है वहाँ पे ई कैपिटल लिखना है, बी कैपिटल है और एन कैपिटल है, उस तरह हमको ये लिखना है, राइट। तो पहला जो टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू होगा, सपोज हमने 20 एंटर किया है तो डॉट वैल्यू से वो 20 इंटीजर में कन्वर्ट होकर नंबर में से हो जाएगा। सेकेंड थिंग, हमने जो N2 जो टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो वैल्यू है, यहाँ पे जो डॉट वैल्यू हमने पीछे लिखा उससे वो सपोज वहाँ पे भी हमने 20 डाला तो 20 N1 में भी स्टोर हो जाएगा। तो अलर्ट नंबर प्लस नंबर 1, तो नंबर और नंबर 1 में 20 था वो 40, तो अलर्ट बॉक्स में 40 डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये सेकंड मेथड है कि किस तरह हम कंट्रोल के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। उसके बाद है विंडो का एक ये मेथड है ब्लर, जिससे हम विंडो को सेट फोकस और लॉस फोकस कर सकते हैं। अब सेट फोकस क्या है कि हमको क्या करना है कि किसी विंडो को दूसरी विंडो में हाइड करना है या किसी विंडो को बैकग्राउंड में डालना है। तो ब्लर मेथड इज यूज टू रिमूव द फोकस फ्रॉम द करंट विंडो, दैट इज इट सेंड द विंडो ओपन विंडो टू द बैकग्राउंड। तो ब्लर से क्या होगा, जहाँ पे भी हमको एक विंडो को हाइड करना है दूसरी विंडो के पीछे, तो हमको वहाँ पे ब्लर यूज़ करना पड़ेगा। तो विंडो डॉट ब्लर, जो भी विंडो को हमने ओपन किया है उसको अगर हमको छुपाना है कोई कोड के बाद, तो वहाँ पे हमको क्या लिखना है, विंडो डॉट ब्लर। जैसे कि हमने एक कैलकुलेटर बनाया है हमारे वेबसाइट के अंदर, अब कैलकुलेटर हम विंडो में बनाएंगे, तो विंडो में बनाने के बाद वो कैलकुलेशन के बाद हमने उसको अगर हमने क्लोज किया या कैंसिल किया तो वो हाइड हो जाएगा, या फिर ओके इस तरह हम वो कोड कर सकते हैं। एज पर द रिक्वायरमेंट हमको कोड करना है, राइट। तो यहाँ पे पैरामीटर इसके कुछ भी नहीं, डज नॉट रिक्वायर्ड एनी पैरामीटर एंड इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। तो ब्लर जो मेथड है उसका कोई पैरामीटर नहीं है और कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, उसको कॉल करेंगे विंडो डॉट ब्लर करके उसको कॉल करेंगे, राइट। उसके ब्लर का अपोजिट है फोकस। तो अगर हमने कोई विंडो को हाइड किया है
उसको बैकग्राउंड में, उसको फोरग्राउंड में लाना है, तो हमारे जो मेन विंडो पे हम कोड करेंगे, राइट। द फोकस मेथड हम यूज़ करेंगे। द फोकस मेथड इज़ यूज टू फोकस ऑन द न्यू ओपन विंडो, डेट इज ब्रिंगिंग बैक द ब्लर विंडो टू द फोरग्राउंड। तो ब्लर और फोकस दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, यानी ब्लर से विंडो बैकग्राउंड में चला जाएगा और फोकस से विंडो फोरग्राउंड में आ जाएगा। तो फोकस डॉट विंडो ये मेथड हमको यूज़ करना है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी पैरामीटर, इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, राइट। इसके बाद हम देखेंगे किस तरह विंडो गेट फोकस और लॉस्ट फोकस करेंगे, यानी ब्लर करेंगे और उसको हाइड करेंगे और उसको फोकस में लाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल न्यू विन करके एक न्यू विंडो बनाया है, इक्वल टू विंडो डॉट ओपन, और यहाँ पे हमने उसका जो टाइटल और जो एड्रेस उसको नल रखा है, यानी एक नया विंडो ब्लैंक विंडो ओपन होगा, उसका विथ हाइट 200 एंड 100 होगा, राइट। न्यू विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट और न्यू विंडो, ये हमने मैसेज भी प्रिंट कर दिया। न्यू विंडो डॉट फोकस, तो वो विंडो क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, यानी हमारा जो मेन विंडो है उसके ऊपर वो विंडो डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। उसके बाद अगर हमको उसको सेम एग्जाम्पल है, अगर उसको हमको बैकग्राउंड में करना है, जो हमारा मेन विंडो उसके पीछे उसको अगर डालना है, राइट, तो पूरा सेम कोड है, मगर यहाँ पे न्यू विंडो डॉट ब्लर कर देंगे एकदम लास्ट में, देखो, राइट। ब्लर कर दिया तो क्या हो गया कि हमारा जो नया विंडो क्रिएटेड है वो बैकग्राउंड में जाएगा। जब आप आपका मेन विंडो मिनिमाइज करेंगे तो वो बैकग्राउंड में वो विंडो दिखेगा, राइट। तो इस तरह हम ये कर सकते हैं, ओके। तो बस यहाँ पे ये इतना हमने कवर कर लिया। यहाँ पे हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा है। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन एकदम ईजी आते हैं, और बुक वगैरह में या नेट पे वगैरह पे देखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट दिया हुआ है, तो आपको ईजी करना है, राइट। तो हमने पहले देखा व्हाट इज़ विंडो ऑब्जेक्ट, विंडो ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू ब्राउजर नॉट टू जावास्क्रिप्ट, इतना याद रखना है, राइट। उसके बाद क्या हमने मेथड देखे, ऑलरेडी अलर्ट कन्फर्म प्रॉम्प्ट हमने देख लिया, ओपन क्लोज हमने अभी देख लिया, राइट। और इसके बहुत सारे दूसरे भी मेथड्स है, राइट। तो हमको क्या करना है कि जो भी हमारे काम में आने वाले जो मेथड्स है उसको ही हमको स्टडी करना है, राइट। जैसे कि यहाँ पे मूव टू, मूव बाई, रिसाइज टू, रिसाइज बाई, प्रिंट, ऐसे बहुत सारे विंडो के मेथड है, ओके। प्रिंट के बदले हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट। तो ये और रिसाइजेबल, रिसाइज टू, मूव बाई, मूव टू, ये सब है बहुत सारे इसके मेथड्स है, मगर जो इंपॉर्टेंट है वही हमको करने हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे ओपन क्लोज भी देख लिया, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा, इसके एग्जांपल देखे, जो उसके विंडो के मेथड है। अलर्ट ऑलरेडी भी हमने यूज़ किया है, फिर भी हमने इसका एग्जांपल यहाँ पे देख लिया, राइट। फिर कन्फर्म का देखा, कन्फर्म में ओके और कैंसिल दो बटन हो गए, अलर्ट में खाली एक ही बटन होगा, राइट। प्रॉम्प्ट में क्या होगा कि ओके होगा और कैंसिल होगा, और यहाँ पे यूज़र से इनपुट लिया जाएगा, दो बटन हो गए, ओके कैंसिल, और यूज़र से इनपुट लिया जाएगा, राइट। और यहाँ पे हमने वो इनपुट लेने के बाद उसको डिस्प्ले किया है, राइट। उसके बाद ओपन मेथड से न्यू विंडो ओपन करेंगे। यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा है कि न्यू विंडो विद ब्लैंक यूआरएल, यहाँ पे एक न्यू विंडो ब्लैंक न्यू विंडो ओपन होगा। हम यहाँ पे ये प्रोग्राम में हमने देखा कि सारे के सारे उसके जो एट्रीब्यूट्स हमने यहाँ पे देख लिए ओपन मेथड के, राइट। उसके बाद हमने हिस्ट्री ऑब्जेक्ट देखा, हिस्ट्री कंट्रोल एच करके जो हिस्ट्री होती है, नेविगेशन की इंफॉर्मेशन होती है, वो हमने यहाँ पे देख लिया, हिस्ट्री प्रॉपर्टी ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट, राइट। उसके बाद हमने देखा कि हाउ टू गेट वैल्यू ऑफ अ वेब कंट्रोल बाय यूजिंग द गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड गेट एलिमेंट बाय नेम, राइट। इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय नेम। और इसके बाद है ना एक गेट एलिमेंट बाय वैल्यू भी होता है, राइट। मतलब ज़्यादा करके गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये प्रैक्टिकली ये यूज़ होता है। आईडी का मतलब ही आइडेंटिफिकेशन होता है, राइट। तो नेम भी हम यूज़ नहीं करते, हम मोस्टली जो प्रोग्रामर है जावास्क्रिप्ट पे प्रोग्राम बनाते हैं वो गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड ही यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद है हमने विंडो को ब्लर किया बैकग्राउंड में, और उसके बाद विंडो को बैकग्राउंड से फोरग्राउंड में लाने के लिए फोकस मेथड का यूज़ किया, राइट। उसके बाद हमने प्रोग्राम यहाँ पे बनाया कि किस तरह फोकस देना है। अगर हमने विंडो को फोकस किया तो हमारे मेन विंडो के ऊपर दूसरा विंडो आ जाएगा, और हमने उसको ब्लर किया तो वो मेन विंडो के बाद में वो आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये विंडो का जो चैप्टर नंबर था ये यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ ये चैप्टर को। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू वेरी मच।